Welcome student in fourth lecture of vector calculus. Today we will study vector differential operator and gradient of a scalar point function and two questions based on gradient of scalar point function. First we will study vector differential operator. Sometimes it is also called Hamiltonian operator, and this is a symbolic notation of this type: I curly by curly of x plus j curly by curly of y plus k curly by curly of z. This is your symbolic vector and denoted by this dark here. This is vector notation, and this expression, this operator is known as Hamiltonian operator and sometimes is called vector differential operator. And this is known as, sometimes read as del, or we sometimes read at nabla. ठीक है, तो this is your vector differential operator. We can apply this del क्योंकि vector है, you can apply on the phi. Phi is your, as in the first lecture we studied that phi is function of suppose x, y and z. This is a scalar point function. If we apply del on this one, del is your vector operator. So how will you apply del on phi? This is equal to, this is your operator. तो यहाँ पर here, here and here there is a differentiation. So I here, this is curly by curly of x plus j vector, this is curly by curly of y plus k, this is curly by curly of z, operating on a phi. Phi is what here? This is my scalar point function. When you apply your vector differential operator on a scalar point function, this is what? This is my scalar point function. So this is known as gradient of phi. This is read as gradient phi. Sometimes we also call this like this, grade phi. Read at gradient phi, sometimes short grade phi. अगर आपको क्वेश्चन करते हुए ग्रेड फाई मिले, इट मीन्स डेल फाई आपको फाइंड आउट करना है. तो वेयर दिस फाई गोज, दिस फाई गो हेयर, हेयर एंड हेयर, लीनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से. तो दिस इज कर्ली, कर्ली बाय कर्ली ऑफ एक्स, फाई ऑपरेटेड ऑन partial derivative with respect to x. This is j curly phi by curly of y plus k and curly phi by curly of z. ठीक है. In the next lecture we studied geometrical meaning of gradient phi, directional derivative, unit normal, vector to a given surface, level surface. All these we will study in the lecture 5th. Today we will solve some question which are asked in examination grade 5. The first question is, if R vector is equal to xi, yj plus zk and magnitude of this one is denoted by small r, then you have to prove that gradient of r is equal to r vector by r. And second proof है, gradient of r की n is equal to n r की n minus 2 of r vector. And the third is this one. तो ये क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बोला था कि r vector is this one and curly r by curly of x, that is your x by r. तो वो पोर्शन आपको एज इट इज़ यहाँ सोल्व करना है. तो क्या था वो, देखिए आर वेक्टर इज दिस वन, आर डॉट आर क्या होता है आपका, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इसके बराबर है तो हम इसे कंसीडर कर लें. ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था इसे. ठीक है, तो ये आर स्क्वायर है. अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ आर. अगर अभी फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया, इफ़ आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दिस टर्म, वैसे देखिए अगर ये प्रूफ पेपर में आ जाते तो आपको ये करना चाहिए. इसमें एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ एन की वैल्यू -1 है. तो जनरल फॉर्मूला ये वाला है. तो अगर ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में सिंगल आता है तो आपको सिर्फ ये करना चाहिए, ये दोनों तो एन की वैल्यू पुट करके हो जाएंगे. अभी मैं मैनुअली आपको ये अलग से करके दिखाती हूँ, ये अलग से करेंगे.
एंड इन एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन सिर्फ ये है तो आप इस प्रोसीजर से करेंगे। अगर क्वेश्चन तीनों पूछे हुए हैं तो जस्ट सॉल्व दिस एंड पुट n इज इक्वल टू 1 फॉर दिस पार्ट, n इज इक्वल टू -1 फॉर दिस पार्ट। ठीक है, तो इन एवरी केस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट लेक्चर देख लेना बच्चे इसके लिए। करली आर बाई करली एक्स कितना आया था, एक्स बाई आर, करली आर बाई करली वाई, दिस इज योर y by r, and curly r by curly of z, this is z by r. How I calculated this one, just differentiate this with respect to x, I got this one. Now the definition of first proof देखिए, this is gradient of r, write down the definition, जहाँ phi था वहाँ पर r लगा दीजिए तो क्या बनेगा, this is I curly by curly x, this is j curly by curly y, दिस इज प्लस के वैक्टर करली बाई करली ऑफ जेड। किस पर ऑपरेट होगा ये, दिस इज ऑपरेटेड ऑन आर, तो आई आर हियर इन द नेक्स्ट लाइन, आर इज कम्स आउट टू बी हियर। आर किसका फंक्शन है, आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। ठीक है ना, स्क्वायर रूट लेने में बड़ा लंबा क्वेश्चन जाना है, तो आर इज योर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि आर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गॉट द आंसर। अगर ये आप अप्लाई करते हैं तो दिस इज आई करली आर बाई करली एक्स। आपने ये प्रॉपर सॉल्व करना है बच्चों, और ये कम से कम 100 टाइम हम सॉल्व करेंगे इन आवर वेक्टर कैलकुलस। दैट्स वाई मैंने फर्स्ट लेक्चर में कर दिया था और ये कहा था इसे हमेशा आपने जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो इट विल हाफ पेज आपका तो इसी का हो जाना है। ठीक है, तो पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, दिस इज एक्स बाई स्मॉल आर प्लस जे, क्या बनेगा, दिस इज वाई बाई आर प्लस करली आर बाई करली जेड कितना है, जेड बाई आर। फ्रॉम हियर योर आर इज एलसीएम, सो दिस इज एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ जे प्लस जेड ऑफ, यहाँ आपका के भी था, जेड ऑफ के। तो व्हाट इज दिस, दिस इज कैपिटल आर वेक्टर एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब करिए जनरल प्रूफ ऑफ सेकेंड में क्या है बच्चे, जस्ट ग्रेडियंट इज अप्लाइड ऑन आर की एन। ठीक है, तो ग्रेडियंट अगर आर की एन होगा तो अप्लाई द डेफिनेशन, व्हाट इज डेल, डेल वेक्टर ऑपरेटर क्या है आपका, दिस इज करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई प्लस के करली बाई करली ऑफ जेड। फर्स्ट यू विल राइट आर की एन हेयर, इन द नेक्स्ट टर्म यहाँ से हटा के आप इसे यहाँ लिखना, 2 लाइन्स जरूर लिखना बच्चों। ठीक है, ओके, मान लो आपने कर दिया। अब एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, आर फंक्शन हैज़ अ सिमेट्री। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पर सिमेट्री फंडा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैसे होता है सिमेट्री, जैसे आर का डेरिवेटिव है, आर के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ अगर आप इसमें आर के अंदर x की जगह पर y और y की जगह पर z और z की जगह पर फिर से x पुट कर दो तो वैल्यू ऑफ द r रिमेन्स द सेम। x की जगह देखो यहाँ y स्क्वायर कर दो, यहाँ z स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर, तो फंक्शन रिमेन्स द सेम ना। इट मीन्स देयर इज सिमेट्री अबाउट एक्स वाई जेड। इन दैट केस अगर मुझे करली आर बाई करली एक्स का डेरिवेटिव पता है, ठीक है, तो इन दैट केस करली आर बाई करली वाई क्या आएगा, जस्ट चेंज, अगर आप एक्स की जगह पे क्या चेंज कर रहे हो, जस्ट वाई, दैट्स वाई करली आर बाई करली वाई कितना आएगा, वाई बाई आर। आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फंक्शन आर। हेयर आर में सिमेट्री है, तो अगर आपको कोई फास्ट ट्रैक पे कॉम्पिटिशन गेट में अगर ये क्वेश्चन करना है तो आप इसे सिमिलरली करके कर सकते हैं। तो क्या कैसे करेंगे देखिए, आई फर्स्ट सॉल्व दिस वन, जो आंसर आएगा आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सिमेट्री। तो पहले सॉल्व करिए, यहाँ पर इसको नंबरिंग कर लीजिए, सपोज दिस इज नंबर 2 कर लीजिए, क्योंकि आर स्क्वायर इज माई फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस। नाउ डिफरेंशिएट आर की एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ आर की एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एन आर की पावर n minus 1 and inside term का derivative, what is inside term, that is r, तो करली r by करली of x
and I have calculated the value of curly r by curly x. What is the value? Yes, x by r. तो यहाँ आपका this is your n, this is r की power n minus 1 and curly r by curly x is x pi of r. This r above and this gives me this is n r की power n minus of 2 and x. Symmetry in r, symmetry in r function. समझ में आया सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब जैसे देखो यहाँ पर मैंने बोला x की जगह पर y की जगह पर z और z की जगह पे क्या पुट करना है? x. r रिमेन्स r. देखो r की वैल्यू क्या चेंज होएगी? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की जगह अगला जेड की जगह एक्स से, तो इसकी वैल्यू तो ये बन तो है तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो है तो इक्वल टू किसके है? आर. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आता है इन दैट केस यू कैन यूज द सिमेट्री देयर. Only this condition should be there. So here due to symmetry I can symmetry in R, so I can write similarly. देखिए क्या बनेगा? कर्ली बाई कर्ली एक्स आर की एन. एक्स की जगह मैं क्या चेंज कर रही हूँ? वाई. तो जो आंसर है उसमें भी एक्स की जगह पर क्या चेंज हो जाएगा? वाई. तो एन. आर के अंदर तो एक्स की जगह वाई और वाई की जगह जेड, जेड की जगह एक्स करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आर की पावर एन माइनस 2 ही आएगा और इन 2 में क्या आ जाएगा? वाई. तो दिस इज 2, दिस राइट 3, राइट दिस इज इक्वेशन 4 एंड कर्ली बाय कर्ली ऑफ जेड आर की पावर एन. दिस वैल्यू इज इक्वल टू एन आर की एन माइनस ऑफ 2 इंटू जेड. दिस इज 4. नाउ राइट डाउन substituting the values of 3, 4 and 5 in equation 2. तो we got ये क्या है? This is gradient of r की n is equal to I. ये टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये. ठीक है. अब इनमें क्या टर्म कॉमन है बच्चे? इन एवरी टर्म जब आप पुट करेंगे तो दिस टर्म इज कॉमन इन एवरी टर्म. तो टेक दिस, पहले आप पुट कीजिए फिर इनको कॉमन लीजिए. क्या बनता है आंसर? देखो you got this one. And what is the common in every term? This term is common in every term. Take it outside. When you take this outside, what is balanced here? Your value is n. r की n minus of 2 क्या बनेगा बच्चे? This is I x plus j y plus k z. And what is this? This is your, this is n. r की n माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज r वेक्टर. यही आपको प्रूव करना था. ठीक है. एंड द सिमिलरली और थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट आप देखिए, अगर एग्जामिनेशन में 1/r अलग से आता है तो अलग से करिए. अगर सेम क्वेश्चन हो तो n की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए यहाँ पर? -1. ठीक है. तो सेम पैटर्न है तो आप खुद कीजिए. तो मैं जस्ट क्या कर रही हूँ? आई एम पुटिंग दिस इज 6 इक्वेशन. n इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए? देखो r ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? दिस इज नेबुला ऑफ r की -1 एंड दिस इज नथिंग बट n r की n माइनस ऑफ 2 r वेक्टर. ये वाली चीज़ ही है. देखो ये एक तरह से r की n है तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? -1. n इज इक्वल टू -1. तो जैसे ही आप n -1 पुट करेंगे तो दिस इज -1 r की पावर -3 एंड r वेक्टर. दिस इज -r वेक्टर बाय r की 3. अगर इसी का कंटिन्यू हो तो आप ऐसे कर सकते हैं. अदरवाइज आप कैसे करेंगे? अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है इन दैट हो सकता है एग्जामिनेशन में यहाँ 2 आ जाए, 3 भी हो सकता है, क्वेश्चन 3 का भी है. तो अदरवाइज कैसे करेंगे आप इसे? अप्लाई द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? नेबुला 1/r या डेल्टा. दिस इज डेल्टा r इनवर्स and this is I curly by curly of x plus j curly by curly of y plus k curly by curly of z operating on r inverse. तो यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज I curly by curly x r inverse plus j curly by curly of y r inverse plus k curly by curly z of r inverse. अब एक चीज़ बताइए, r में सिमेट्री है
तो आर में अगर सिमेट्री है तो इन्वर्स फंक्शन में सिमेट्री होगी, तो सिमेट्री है तो जस्ट आई विल कैलकुलेट दिस टर्म, द सेम पैटर्न। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड, तो बताओ जरा, करली बाय करली एक्स ऑफ आर इनवर्स। तो पहले क्या है, पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का कैसे करते हैं ऑपरेट, -2, व्हाट इज द इनसाइड टर्म हियर, आर, तो डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म क्या बनेगा, आपको ये डॉट नहीं लगानी वेक्टर में, ठीक है, करली आर बाय करली ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होगा, ये तो मेमोराइज हो जाना चाहिए आपको कि करली आर बाय करली एक्स क्या होता है, दिस इज एक्स बाय आर, राइट आंसर। तो दिस इज 1 बाय, इस आर स्क्वेयर को मैं आर नीचे लिख दूँ, एंड द वैल्यू ऑफ करली आर बाय करली एक्स इज एक्स बाय आर। तो क्या बना ये, -x बाय आर क्यूब ना, ठीक है। तो सिमिलरली आप बताइए करली आर बाय करली वाई क्या बनेगा, तो करली बाय करली वाई ऑफ आर इनवर्स, बस ये फॉर्मूला लगा दो ये वाला, तो क्या बना देखो, दिस इज -y बाय आर ऑफ क्यूब, एंड करली बाय करली जेड ऑफ आर इनवर्स, दिस इज -z बाय आर क्यूब। तो उसकी नंबरिंग कर दीजिए, सपोज इट्स माई 7 इक्वेशन, this is 8th, this is 9th, and this is 10. Now put the value of 8, 9, 10 here, here, and here. We got, so on putting we get this one. Now what will you take common, 1 minus 1 by r cube is outside, the balance is ix plus j of phi plus k of z. What is this, this is my r vector, so minus r vector by आर ऑफ क्यूब, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन इज इफ u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड w इज दिस वन, you have to show that these three vectors are coplanar. Suppose this is my a vector, this is my b vector, and this is my c vector. In the first lecture हमने किया था notation scalar triple product. Scalar triple product of three vector is given by this formula, and this is nothing but a dot b vector cross of c vector. ठीक है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, we wrote this one by this formula. क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर आपका, this is a1 a2 a3, if a1 i a2 j और a3 k आपका a vector है, this is b1 b2 and b3 and c1 c2 and c3. आपको क्या करना है, आपको ये डिटरमिनेंट अब एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो जब आप इसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, अगर मुझे ये कहना है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मुझे कहना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लानर, तो इसके लिए आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी एंड सी वेक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 वेक्टर आएगा या 0 स्केलर आएगा, देखो बच्चे, बी क्रॉस सी वेक्टर आएगा, वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आंसर क्या आएगा, स्केलर, तो दैट्स वाई ये स्केलर 0 आएगा। यानी ये क्वेश्चन आपका सिंपल है कि आपके पास u गिवन है दिस वन, v इज़ दिस वन, w इज़ दिस वन। तो जल्दी से एक काम कीजिए, ग्रेडियंट ऑफ u कैलकुलेट कीजिए, जैसे अभी क्वेश्चन ग्रेडियंट v एंड ग्रेडियंट w, और जस्ट राइट दिस डिटरमिनेंट हियर। तो कैलकुलेट करो ग्रेडियंट ऑफ ऑल दिस u v एंड w। तो देखो बच्चे, डेल ऑफ u, अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, तो आई करली बाय करली एक्स ऑफ यू प्लस जे करली बाय करली वाई ऑफ यू प्लस के करली बाय करली जेड ऑफ यू। तो यू क्या है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो डिफरेंशिएट करो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, तो ओनली वन, तो आई डिड नॉट राइट इट हियर, ठीक है। तो ऐसे ही इसका y के साथ करोगे तो 1, एंड इसका z के साथ करोगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट 0, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज 1, तो यू गॉट दिस वन। डेल v, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर की जगह हर जगह v रखा जाएगा, v की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, योर आंसर इज 2x, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज 0, सिमिलरली 2y एंड दिस इज 2z, यू गॉट दिस वन। देन ग्रेडियंट ऑफ, इसको ग्रेड w भी कह सकते हैं, ग्रेड ऑफ w, तो यहाँ पर u की जगह सब जगह w आ जाएगा,
व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट तो ये रह जाएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा तो वाई एज इट इज, हेयर द वैल्यू इज 0, जेड एक्स का डेरिवेटिव किसके साथ है, एक्स के साथ, तो यहाँ जेड एज इट इज इंटू में 1 प्लस जे, सेम पैटर्न हेयर एंड हेयर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ इस क्वेश्चन में, देखिए इन दिस क्वेश्चन, ये आपका गेट में पूछने लायक क्वेश्चन है, अगर इसको फास्ट ट्रैक पे आपने करना है, देयर इज सिमेट्री इन एवरी फंक्शन, देख लो करके, यू के अंदर भी जहाँ एक्स है वहाँ वाई है, वहाँ जेड जहाँ जेड है वहाँ एक्स, यू रिमेन्स यू, तो यू इज सिमेट्री, तो आपका डेरिवेटिव एक्स के साथ 1 आया तो वाई के साथ भी 1 और जेड के साथ भी 1, ठीक है। इसमें देखो यहाँ एक्स के साथ डेरिवेटिव 2x, तो वाई के साथ क्या आएगा, वाई कर रहे हो ना, तो 2y एंड 2z, हेयर इज आल्सो सिमेट्री इन दिस फंक्शन, अगर आप वो सिमेट्री वाला फंडा लगाएंगे दिस फंक्शन रिमेन सेम, तो यहाँ पे आंसर कितना मिला, वाई जेड, तो ये किसके साथ डेरिवेटिव है, एक्स के साथ। अगर मैं बिना ये डेरिवेटिव किए ये आंसर निकालना चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्या आएगा, तो वाई के बाद कौन आता है, जेड, और जेड के बाद देखो वाई की जगह एक्स, जेड के बाद यहाँ डेरिवेटिव वाई के साथ किया ना, तो वाई के बाद जेड है, जैसे ये है वाई के बाद जेड है और जेड के बाद क्या आया, एक्स आया, ठीक है, सिमेट्री है, जेड प्लस एक्स आना चाहिए था। चलिए यहाँ अगर जेड प्लस एक्स है तो जेड के बाद क्या आता है, एक्स, और एक्स के बाद क्या आता है, वाई, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, पर वो फास्ट ट्रैक पे करने के लिए फिलहाल ये डेरिवेटिव हो गए, ठीक है। आपके पास क्या मिल गया, यू गॉट द 3 वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर क्या है आपका, आई जे के, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर के लिए अब आप क्या लिखेंगे, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0, तो टेल मी द वैल्यू ऑफ a1, देखिए फर्स्ट कंपोनेंट क्या है इसका कोफिशिएंट, दिस इज 1 1 एंड 1, तो यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट बनेगा 1 1 1, ठीक है। फिर सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो व्हाट इज द b1 वैल्यू हेयर, दिस इज 2x, दिस इज 2y एंड दिस इज 2z, ठीक है। फिर आपने क्या पुट करना है, हेयर c1 द कोफिशिएंट ऑफ y इन द थर्ड वेक्टर इज y प्लस जेड एंड c2 इज इक्वल टू x प्लस जेड एंड दिस इज माई c3 इज इक्वल टू y प्लस एक्स, लिखिए डिटरमिनेंट क्या बनता है, देखिए, तो ये डिटरमिनेंट इज लाइक दिस। नाउ हाउ टू सोल्व द डिटरमिनेंट, अब देखिए यहाँ 1 1 1 है, ठीक है, here is 2 2 and 2, so you can take the 2 from the second row, if you take 2 outside, what is the balance here, this is 1 1 1, this is x, this is y, this is z, this is y plus z, this is x plus z, y plus x, ठीक है। अब यहाँ देखिए x की कमी है, इसमें y और इसमें z, अगर मैं यहाँ पर ऑपरेट कर दूँ, क्या ऑपरेशन लगाऊँ, इफ़ आई ऑपरेट, ये कौन सी रो होती है, थर्ड रो, और ये कौन सी रो है, सेकेंड रो, इफ आई ऑपरेट ऑन थर्ड रो, व्हाट इज थर्ड रो में सेकेंड रो को ऐड कर दूँ, तो व्हाट आई गॉट हियर, दिस इज 1 1 1 एक्स वाई एंड जेड एंड दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस बिकम्स वाई ऐड हो जाएगा बच्चों, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें आपने सेकेंड टर्म जोड़नी है, ऐड करनी है, तो दिस इज योर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन, you can take this term outside from the third row, तो take common, क्या कॉमन लेना है, x plus y plus z from the third row, तो what I got here, this is x plus y plus z, ठीक है ना, तो this determinant 1 1 and 1, this is x y and z, this is 1 1 and 1, is there any property, देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो इसको एक्सपेंड कीजिए, बट मैं तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाऊंगी, इफ़ टू रोज आर आइडेंटिकल, इन अ डिटर्मिनेंट, then the value of determinant is equal to value of determinant कितनी होती है बताओ, जरूरी नहीं है रोज हैं, आपके कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकते हैं, सेम टू सेम कॉलम हो, इन दैट केस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी 2 into 0 इज आंसर इज 0, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0, दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करते हैं, दीज वेक्टर्स यानी ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ v, ग्रेडियंट ऑफ w
दीज 3 वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनने के चांसेस रहते हैं। तो अब आज हमने किया जस्ट ग्रेडियंट ऑफ फाई। एक सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको एक फाई की वैल्यू दे दी जाए एंड ये कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल फाई एट दिस पॉइंट। जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में यहाँ बना देती हूँ। ये वहाँ के लिए जहाँ बीटेक में एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल वी एट पॉइंट, सपोज आई सेड 1 - 2 and -1। सपोज दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट डेल यू वी। तो क्या वैल्यू है बेटे इसकी, इसके आंसर है 2xi 2y ऑफ j एंड 2z ऑफ k। मतलब एक इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है इस फॉर्मेट का, 1 - 2 and -1। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z। तो आपने क्या करना है, जस्ट पुट हियर x इज इक्वल टू 1। तो दिस इज 2i, y की जगह क्या पुट करना है -2। तो दिस इज -4 ऑफ j एंड z इज इक्वल टू यहाँ -1 पुट कर दो। तो दिस इज माइनस का क्या बन जाएगा 2 ऑफ k। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।